اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع اور تینوں انتہائی اہم ہیں۔ آپ سے سٹارٹنگ میں ایک اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں۔ میرے پاس ایک اور اعزاز بھی ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، عارف نظامی صاحب مالک ہوتے تھے ان کے زیر نگرانی، اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے اتوار کو کہ اتوار والے دن میرا اداریہ آئے گا۔ تو بعض لوگ تھے جی، آج کل تو بس عمران نذیر جیسے صحافی آگے ہیں یا صابر شاکر جیسے صحافی آگے ہیں جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں ماہر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حق لال کا کھلایا ہے، بچے میرے انتہائی اللہ کا کرم نوازی ہے، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ سب ویل سیٹلڈ ہیں اور میری بہت عزت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شادی شدہ بچے بھی میرے سامنے ڈر کے مارے نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی بات کرنی ہو تو پہلے بہنوں سے سفارش ڈلواتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ میں ایسا ہوں جیسے ایک دوست ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پوتیوں کے ساتھ بھی میں ایسا ہی ہوں جیسے ایک دوست ہوتا ہے۔ پوتوں کو بھی میں نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی میں نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، ان کے بھی بچے تقریباً جوان ہی ہیں۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے، حق لال کھلایا تھا نا، میرے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح بندیال صاحب نے کیا کہ بیوی بھی جوتے مار رہی ہے اس کو، بیٹی بھی جوتے مار رہی ہے، بیٹے بھی جوتے مار رہے ہیں، گھر میں اس کی عزت ایک 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے اس بندے کی گھر میں، گھر کے اندر۔ اور یہی ہے صاحب ثاقب نثار کا بھی ہے۔ تو اس پہ بات کرنے سے تفصیل سے بات آج ہوگی اور آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایسی معلومات میں نے ڈھونڈ کے نکالی ہوئی ہیں، نہ کہ کیا یاد کریں گے، لیکن آپ سے مجھے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ دیکھیں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں، 75 سال کا ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی۔ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد حق سچ آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں حق سچ اسی طرح آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں تو پھر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہوتا ہے نا، ان سے بھی سبسکرائب کروایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ نوجوان نسل کو دکھایا کریں میری ویڈیوز، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے دین کی طرف راغب کرتا ہوں، اپنی ملک کی طرف کرتا ہوں کہ ملک کے وفادار بنو، اپنی آرمی کے وفادار بنو، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنو، اور اس آرمی کے وفادار بنو کہ جو ہماری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کروا دیتے ہیں، اور ہماری خاطر اپنی جان، یوتھیوں میں سے کوئی جان پیش کرے نا، کہہ رہے تھے ہم خان کے لیے اپنی جان پیش کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، توبہ استغفار۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو نچلے لیول سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے، کسی کو سزا بھی نہیں ملی ہے، تو خان صاحب اب منتیں کر رہے ہیں زمان پارک کے باہر، کوئی یوتھیا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان نہیں تھا ان میں، یہ ورگلائے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یقین جانیے مسلمان ان میں سے کافی لوگ نہیں تھے۔ جو بہکاوے میں آگے ان کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر یہ قادیانیوں کی جماعت تھی، 99% اس میں قادیانی تھے۔ تو اب آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گروپوں میں شیئر کریں،
اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک بات اور میں سچ بتاتا تھا، جھوٹ سے پرہیز کرتا تھا، لفافے نہیں لیتا تھا۔ آج الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، آپ فیس بک کھولیں، اس میں میرے آپ کو 2 اکاؤنٹ نظر آئیں گے، ایک فیس بک لائٹ پہ بھی ہے اور دوسری فیس بک پہ بھی ہے۔ آپ ٹویٹر پہ کھولیں، اس میں بھی میرا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ انسٹا پہ جائیں، اس پہ بھی میرا اکاؤنٹ موجود ہے۔ ہر جگہ پہ میرے، اچھا ٹک ٹاک پہ میرے لاکھوں کے حساب سے، میں جو بھی ویڈیو چڑھاتا ہوں نا، لاکھوں کے حساب سے اس کو لوگ ویوز بھی لاکھوں کے حساب سے آتے ہیں، اور لائک بھی الحمدللہ لاکھوں میں نہیں لیکن کئی ہزاروں میں آتے ہیں۔ ویوز لاکھوں میں آتے ہیں اور لائک جو ہے نا کئی ہزاروں میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے دیکھے مجھے نام پہچان دے دی، نام دے دیا، عزت دے دی، شہرت دے دی، پیسہ بھی دے دیا۔ کیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کیا جائے نا تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ تو توبہ استغفار، اللہ معافی دے۔ کل تک جو یوتھیے مجھے یقین جانیے کہ انتہائی نازیباً الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن آج دیکھ لیں وہ کس حال میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں نے 2-3 گھروں میں دیکھا جو ہمارے اپنے محلے سے اٹھائے گئے تھے نا، ان کے گھروں میں گیا ہوں، ایک بیوہ عورت ہے، اس کا 3 بیٹیاں اور اکلوتا بیٹا۔ وہ کہتی، میں بار بار اس کو منع کرتی تھی، تیرا کیا کام ہے، ہم غریب لوگ ہیں۔ وہ کہتا تھا، نہیں جی، میں خان صاحب کے پیچھے جان قربان کر دوں گا، میں جان قربان کر دوں گا، وہ میرا لیڈر ہے۔ اور لیڈر بھی نہیں کہتا تھا، کہتا تھا وہ میرا مرشد ہے۔ مرشد بنایا ہوا تھا ان جاہلوں نے اس کو، قادیانی کو۔ جب غیر اس کے مسلم کے پیچھے لگو گے نا تو یہی انجام ہوتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا ہے۔ کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئے وہ قسمیں کہ ہم خان کے پیچھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب ریڈ لائن اکیلا بیٹھا ہوا بلا رہا ہے وہ آپ لوگوں، آپ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اب جاؤ نا، بس اتنی ہی تھی۔ اسی لیے تو میں 4 سال سے پچھلے کہہ رہا تھا کہ ملک کے وفادار بنو۔ اس نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون ہے، ان کو کل کے بجائے آج لٹکا دو۔ وہ پوچھو جا کے اس بیوہ عورت سے جس کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی جی ایچ کیو پہ حملے میں اریسٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اور کیا ہے کہ بالکل ویڈیوز موجود ہے، اس کی ماں بھی کہتی ہے، ہاں جی ویڈیوز مجھے بھی دکھائی گئی ہے، میرا بیٹا ہی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جو اس نے کام کیا ہے بہکانے پہ کیا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو معاف کیا جائے۔ نہیں معافی ملتی ہے، میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ میں نے کہا جی اس کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے سیدھا سیدھا، کہ ملک کی افواج پہ حملہ کرنا یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور اس کے پیچھے جس نے ان جاہلوں کو صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ تو میرے ورکر ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنے اداروں کے وفادار بنے، سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کے وفادار بنے۔ یہ دیکھیں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، میں خود مڈل کلاس ہوں، مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں مڈل کلاس طبقے سے ہوں۔ تو ہمارا کام ہوتا ہے محنت کرنا۔ میں اس عمر میں 75 سال کی عمر میں بھی میری دکان ہے جاپان الیکٹرانکس کے نام سے راولپنڈی میں اس پہ جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، پورا ٹائم دیتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں، میں یہ ملک کے لیے بھی، صحافت میرے خون میں رچی بسی ہے، ملک کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ میرا چینل بھی چل رہے ہیں، میرے 3 چینل ہیں، ایک کاروباری چینل ہے، ایک یہ ولاگ کا چینل ہے ملک کے لیے، اور ایک اور مذہبی چینل بھی ہے۔ تو تینوں میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کافی زیادہ سبسکرائبر موجود ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلے
आज जनाब, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये भी जाहिलों की गवर्नमेंट है, इनमें अक्लमंद कोई भी नहीं है। अक्लमंद होता ना तो आज ही जूते मार के अटॉर्नी जनरल को बाहर निकालते। अटॉर्नी जनरल को आज बेनकाब करके नंगा करके रख दिया है काजी फायज ईसा ने। उसने कहा जी आपको नोटिस हुआ था कि वो जो बेंच बैठा था उसने आपको नोटिस दिया था? नहीं जी, नहीं दिया था। तो फिर आप क्या अम्ब लेने गए थे वहां पे? आपकी मौजूदगी वहां पे साबित कर रही है कि आप भी बंदयाल के साथ मिले हुए हैं और आपने भी डॉलर खाए हुए हैं उन आलमी ताकतों से, जिनके डॉलर खा के साकब निसार बिका है, बंदयाल बिका है, बंदयाल के दोनों चमचे बिके हैं। ये भी बिका हुआ है, अटॉर्नी जनरल भी बिका हुआ है। मैं इसके बाप से भी नहीं डरता हूं, जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं सिर्फ उस जात पाक से डरता हूं बस। 75 साल को हो गया हूं, वैसे भी बोनस पे चल रहा हूं। मेरे जैसे लाखों इस मुल्क पे कुर्बान। हमने इस मुल्क को देखा हुआ है कि किस तरह बना था, कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, कितनी बच्चियों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी, कितने लोगों ने करोड़ों की जायदादें छोड़ के यहाँ पे एक कपड़ों के जोड़ा लगा हुए पहुंचे थे। इस तरह बना था ये पाकिस्तान। इस तरह नहीं बना था कि जिस जज का दिल चाहे उठ के उसको लूटना शुरू कर दे, जिस अटॉर्नी जनरल का दिल चाहे उठ के तबाह करना शुरू कर दे। अटॉर्नी जनरल का काम ही नहीं बनता था उस कोर्ट में जाने का। इसकी मौजूदगी साबित कर रही है कि ये भी बंदयाल ग्रुप का हिस्सा है। अब गवर्नमेंट बेवकूफ है या ये बच्ची है, जेल बैठे हुए हैं वजारतों में बड़ी बड़ी लेके, ये जहालत की इंतखा को पहुंचे हुए बैठे हैं। नहीं हो रही हुकूमत तो छोड़ देना। नवाज शरीफ का भी नाम खराब कर रहे हैं ये जनाब। बंदयाल ने आज अपनी सास को बचाना। अच्छा देखें, पूरी दुनिया का कोई एक केस बंदयाल मुझे बता दे, पूरी दुनिया का चैलेंज मैं बंदयाल को उसके बाप को भी चैनल करता हूं, बता दे कि जिसमें जिस बंदे पे केस हो, जिस बंदे की करप्शन हो, करप्शन का इल्जाम लगा हुआ हो, वो जज खुद बैठ के तो फैसला करे कि भाई हाँ जी मेरे पे करप्शन का केस है। कोई एक पूरी दुनिया का केस बताएं। इन उल्लू के पट्टों ने मुल्क को, अदलिया को, अदालतों को दुनिया के 140 मुल्कों में से 129वें नंबर पे लेके चले गए हैं। ये हालत है इनकी जहालत की। ये जज बने हुए बैठे हैं, इनको तो जूते मार के बाहर निकालना चाहिए, और अटॉर्नी जनरल समेत सबको। क्या पूरे पाकिस्तान में इनको अटॉर्नी जनरल कोई नहीं मिला था कि उसको लगाया कि जो कि बगैर नोटिस के ही जाके पहुंचा उस उधर और उसने जाके रुकवाया? अच्छा, किस कानून के तहत बगैर नोटिस दिए, बगैर उनको सुने, उस कोर्ट ने तो पहला दिन ही कह दिया था कि भाई हम किसी जज के खिलाफ तहकीक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस चीज की तहकीक कर रहे हैं कि ये आवाज असल है या नकल है, या वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं है, या ये उन लोगों की है या नहीं है। ये उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को दे देना था आगे, फिर गवर्नमेंट ने चलाना। इन्होंने रोक के, अच्छा इसमें खान साहब का कोई तलक वास्ता ही नहीं था। खान साहब ने जाके पिटीशन दायर की कि जी इसको रोका जाए, और उन्होंने फौरी तौर पे बंदयाल ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि बंदयाल की सास का उसमें आवाज थी, बंदयाल की बीवी की और इमरान नियाजी की इश्क मशूकियों की उसमें वो रिकॉर्डिंग थी, और हर हरबा इस्तेमाल हुआ था। अच्छा एक और चीज मैं आज आप लोगों को बता दूं, जमान पार्क नहीं था, वो जना पार्क था। वहां पे ये बड़े बड़े जितने भी थे ना, इनकी बीवियां जाके अपनी जिनसी ख्वाहिशें जो इनके मर्द पूरी नहीं कर पाते थे ना, वहां जाके अफगान दरिंदे बैठे हुए होते थे ना, वो अच्छी तरह इनकी ख्वाहिश पूरी करते थे। तब ये वहां जाके खुश होके आती थी, और वहां खुफिया तौर पे इनकी वीडियोस बना ली जाती थी, और बाद में फिर उसी के थ्रू ही इनको ब्लैकमेल किया जाता था। वो साबका नैब के चेयरमैन, वो चुम्मा चट्टी वाला बाबा, उसको भी इसी तरह उसकी भी वीडियोस बनाई गई थी, और उसको ब्लैकमेल कर करके ना तो किस तरह जुल्म उससे करवाते रहे हैं। इसी तरह इन सब की वीडियोस वहां पे भी एक पूरा ढेर मौजूद है। उसके अलावा जो है ना, जनरल फैज से बहुत वीडियोस निकली थी जो उसने इमरान से ही हासिल की थी। ये ब्लैकमेलर ग्रुप था, ये कोई सियासी जमात नहीं थी। ये हकीम सईद ने 40 साल पहले और डॉक्टर इसरार ने 25 साल पहले बता दिया था कि ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं, और इन्होंने मुल्क तबाह करना है, इस मिशन पे भेजा गया इनको। अच्छा आज एक और बात बताऊं आप लोगों को कि इंतहाई ताकतवर किस्म के इन अमेरिका में इंतहाई ताकतवर किस्म के जो, मतलब
बहुत उहदों पे, जैसे अल्लाह ने शैतान को बहुत सारी ताकतें दी हुई हैं ना, ऐसे ही कादियानियों को भी अल्लाह ने बहुत सारी ताकतें दुनिया में ही दे दी हैं कि जाओ ताकि आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा ही ना हो, जब मैं दोजक में डालने लगूं तो तुम कोई गिला शिकवा ना कर सको। अल्लाह ने इनको बहुत इख्तियार दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको पावर दी हुई है, बहुत हिसाब बेहिसाब पैसा दिया हुआ है। आज इंतहाई बाअसर जो है ना, मैं कन्फर्म खबर आपको बता रहा हूँ कि इंतहाई बाअसर 5 बंदों का ग्रुप पेश हुआ है अमेरिका के, मतलब गवर्नमेंट के पास मिले हैं जाके, और बाकायदा एक दरख्वास्त उन्होंने पेश किया है, एक पटिशन दायर किया है, पटिशन पेश किया है कि जनाब इमरान अहमद न्याजी हमारा रहबर है, हमारा रहनुमा है, हमारी कादियानी उसका अहम रुकन है तंजीम का, लिहाजा उसको पाकिस्तान में उसकी जान को ख़तरा है, उसको ख़तरा है, और उसको वहाँ की आर्मी से, वहाँ के अदालतों से नहीं कहा उन्होंने, वहाँ की आर्मी से उसको बचा के अमेरिका सियासी पनाह दी जाए अमेरिका में। मैं क्या कितने साल से कह रहा था ना कि ये कादियानियों की जमात है, अब आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, इमरान नियाजी के खिलाफ इमरान नियाजी की ड्यूटियां लगाई थी, 7 ड्यूटियां, 5 तो उसने कंप्लीट कर ली थी, सिर्फ 2 रह गई थी। तो अल्लाह सलूट पेश करता हूँ बाजवा साहब को, जब उनको पता चला ना कि अब ये वाली 2 रह गई हुई हैं, तो एक मुल्क को तोड़ना, 4 टुकड़े करना, और दूसरा नंबर एटमी असासाजात इंडिया मुंतकिल करना, और 4 टुकड़े करके कमज़ोर कमज़ोर मुल्क बना के 4 तो इंडिया के मातहत कर देना, सी पैक रोकना। फिर उसने रातों रात हुकूमत तब्दील की। वो बाजवा मुल्क का वफादार था, गद्दार नहीं था। सिर्फ इन गद्दार जर्नैलों ने उसको गलत गाइड किया था, फैज समेत वो उसको गलत गाइड किया गया था। वो मुल्क का हरगिज़ गद्दार नहीं था, वफादार था 200%। मैं यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम को कि वो पाकिस्तान का वफादार था, गद्दार नहीं था। अगर होता तो मैं सबसे पहले कहता। तो उसके बाद जनाब अब आप आ जाएं जनाब के, देखें किस तरीके से पूरी दुनिया में यहूदी जो है ना चीख रहे हैं। अच्छा, वो जमाइमा, वो उसका भाई, उसका बाप, सब कह रहे हैं जी कि इसको हमारे हवाले कर दिए जाएगा, हमें दे दिया जाए। क्यों क्यों भाई दे दिया जाए? वो दहशत गर्दी के उसमें, गद्दारी के उसमें हुआ है। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं कि 1 मिनट। अच्छा, 2 पाकिस्तान के बड़े चोटी के सहाफ़ी हैं, एजाज सैयद और उमर चीमा। इन दोनों ने ये खबर दी है, खबर ब्रेक किया है। मैं उनके भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये वैसे गलत खबर देने वाले नहीं है दोनों सहाफ़ी, ये भी मतलब एतबार करने वाले सहाफ़ी हैं, जिनको सही सहाफ़ी कहा जाता है ना, वो है। तो उन्होंने खबर दी है जनाब के ये जो मंसूबा बनाया गया था ना कि फौज को अंदर से मतलब वो करके हमारे जनरल आसम मनीर साहब को इसके अलग कर देना, आर्मी चीफ के ओहदे से हटा देना, और उसके बाद फिर काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकना, और इमरान नियाजी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना। ये इसमें जनाब कन्फर्म खबर इन दोनों ने दी है अपने ज़राए से तस्दीक करने के बाद। मैं उनके भी आप पे बता रहा हूँ कि इसमें बंदयाल भी शामिल था, और क्या नाम है ये अलवी, आरफ अलवी भी शामिल था। ये दोनों भी शामिल थे, और बाकायदा प्रूफ मिल गए हैं गवर्नमेंट को, बाकायदा एजेंसियों के पास प्रूफ मौजूद हैं इस चीज़ के। और ये कल या परसों मैं ख़ास तौर पर वकीलों को कहता हूँ कि अगर मतलब इसको अरेस्ट किया जाएगा और हफ्ते बाद 10 दिन बाद बस इसका नंबर आने वाला है, इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद वकीलों ने इसका साथ नहीं देना है। वकील गौर से सुन लें कि वकीलों ने इसका साथ नहीं देना, ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क के गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। अब आप आ जाएं जनाब के इमरान नियाजी को कौन से आलमी ताकतों ने खरबों डॉलर भी और नीचे से ऊपर तक इन्होंने लोग खरीदे थे, आर्मी के अंदर से भी खरीदे थे,
सुप्रीम कोर्ट से खरीदे थे, जजों को खरीदा गया था, हाई कोर्ट के जजों को खरीदा गया था, सेशन कोर्ट के जजों को खरीदा, खरबों डॉलर आए थे बाहर से, सियासतदानों को खरीदा गया था, हर तरह का पूरा मतलब मंसूबा इनका आज का नहीं, 40 साल पहले से यह सिलसिला चल रहा था। तो अब जाके एंड हुआ था, ये एंड है, उस जात पाक ने इनका एंड इनके मुंह पे ही मार दिया है। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी सुपर पावर अल्लाह की जात पाक है। अब यकीन कर लो कि वाकई वो अल्लाह की जात पाक की सबसे पावरफुल है। उसी के आगे झुका करो और नमाज पढ़ा करो और रो रो के उससे अपने गुनाहों की माफी मांगा करो, पता नहीं कब नंबर लग जाए। तो सबसे पहले कब्र में हिसाब होता है नमाज का, पूछ होती है नमाज की, क़यामत वाले दिन भी सबसे पहले नमाज के मुतालिक ही पूछा जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें, नमाज की पाबंदी किया करें। तो अब आप आ जाएं जनाब के साथ। आलमी ताकतों ने खरबों डॉलर फॉरेन फंडिंग केस में ये सब कुछ मिल चुका हुआ है। स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, कौन कौन से अकाउंट से खान को फंडिंग अमेरिका से हुई थी, इसराइल से हुई थी, इंडिया से हुई थी। तो ये जो है ना 7 काम खान को बताए गए थे। नंबर 1, मुल्क की मैशियत तबाह करना, वो कर चुका था। नंबर 2, स्टेट बैंक IMF के हवाले करना। नंबर 3, इतना कर्जा ले लेना, इतना कर्जा ले लेना कि वो आने वाली हुकूमत के लिए उसको उतारना ही नामुमकिन हो जाए। 75 सालों के कर्जे खान ने 4 सालों में डबल किए, ये भी पूरा हो गया था। अब चौथा जनाब आ जाए जनाब के मुल्क में कोई वो नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना, क्योंकि तबाह जो करना था उन्होंने कोई नहीं किया, खान ने ये भी पूरा किया। उसके बाद फिर जनाब उनका एक और था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दोस्त ममालिक के साथ खराब करना, वो भी खान ने किया, कंप्लीट कर चुका था। सऊदिया को दूर कर दिया था, चाइना का बॉर्डर तक बंद हो गया था, जो अभी बाद में शहबाज शरीफ ने खोला था। बॉर्डर तक सील कर दिया गया था, चाइना को नाराज किया, अमेरिका ना चाइना को नाराज किया, फिर सऊदिया को नाराज किया, तुर्की को नाराज किया, हत्ता कि कोई ऐसा मुल्क छोड़ा नहीं था खान ने जिसको नाराज ना किया, और चुन चुन के ये भी पूरा किया। और अभी 5 पूरे कर चुका था। 2 कौन कौन से रह गए थे कि फौज को और अवाम को लड़ाना और उसी आड़ में ये खाना जंगी शुरू करवाना, इसके लिए उसने भर्ती किए हुए थे। तो ये टाइगर फोर्स बनाई हुई थी। इनको 1 लाख रुपया महीने की फी बंदा सैलरी ये दे रहा था, वही अमेरिकन पैसों से ही, वो जो बाहर के ममालिक से आलमी ताकतों ने दिया हुआ था ना इसको खरबों डॉलर, उसमें से ये सैलरियां देता था उनको इसीलिए ट्रेन किया गया था। लेकिन वो अल्लाह पाक ने उसका वो भी मंसूबा नाकाम किया। और आखिरी मंसूबा क्या था कि एटमी सासाजात अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज के हवाले करना, उन्होंने आगे इंडिया के हवाले कर देने थे। और उसके बाद फिर 4 टुकड़ों में मुल्क को तकसीम करके अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज आ जाती। उन्होंने छोटे छोटे 4 मुल्क बना के ना तो इंडिया के मातहत कर देने थे, जैसा ये पहले प्लान कर चुके हुए थे। इराक़ में अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पे इन्होंने फ्रॉड किया था, इराक़ को तबाह किया, शाम को किया, मिस्र को किया, उर्दन को किया, लीबिया को किया, कोई मुल्क मतलब इन्होंने छोड़ा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को कायम हुआ था, इसकी हिफाजत अल्लाह पाक कर रहा था, यहाँ पे वो नाकाम हुए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह नाकाम ही होंगे, क्योंकि इसकी हिफाजत वो ज़ात पाक कर रही है। उसने आसम मुनीर साहब की क़यादत में एक इंतहाई अहम बना दिया है कि ऐसा नेटवर्क बना दिया है कि जिसमें तमाम सियासी जमातों के वफादार लोग जो मुल्क से वफा करते हैं, अवाम से वफादार हैं, जो जिनको पता है कि कल हमने दोबारा वोट मांगने अवाम के पास जाना है, उन ममालिक को शामिल किया। उन सब दिमागों ने इकट्ठा होकर इसको क्राइसिस से निकाला। पैसा एक था नहीं था खजाने में खान को, तो इसीलिए खान कह रहा था कि भाई दिवालिया वो वाकई हो चुका हुआ था, सही कह रहा था वो, क्योंकि अगले महीने सैलरियां देने के लिए भी पैसे हमारे पास नहीं थे। लेकिन वो ज़ात पाक ऊपर बैठी हुई थी ना, उसने सारा कुछ कर दिया। अभी 11 अरब डॉलर खजाने में मौजूद है, जिसका बंदयाल को फिक्र लगी हुई थी कि ये जल्दी लगाओ। उस उल्लू के पट्टे को इतनी अकल नहीं कि हमने कहा था असेंबलियां तोड़ो, हम क्यों अपने अपने टैक्सों का पैसा लगाएं,
5 साल अभी पूरे नहीं हुए, जब 5 साल होंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर बाप का उसका बंदियाल का बाप भी आ जाए इलेक्शन लड़ रहे, उसको अपनी औकात का पता चल जाएगा कि उसकी क्या औकात है, क्या वैल्यू। साकब निसार आ जाए ना, इलेक्शन लड़े, उसको आवाम की तरफ से सिवाय जूतों के कुछ नहीं मिलेगा, जूतों के हार पहनाए जाएंगे इनको, क्योंकि ये गद्दार है मुल्क के। इसमें ये गद्दारी में ये जो आवाम को और लड़ाने को मंसूबा था, इसमें ये सब शामिल थे और पूरे पूरे सबूत मिल चुके हुए हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, देखें नवाज शरीफ के कितने लोगों को इन्होंने साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो 2 साल देखे उससे ऊपर सजा काटी थी हमजा शहबाज ने। उसको ये बार बार कहते थे तुम आज नवाज शरीफ और से ला ताल्लुकी का ऐलान करो, हम तुम्हें वज़ीर आला भी बना देंगे पंजाब का और रिहाई भी दे देंगे। उसने नहीं किया, किसी एक ने भी नहीं किया, तो सिवाय उस जाली पीर के, वो जो बिक गया था 3 अरब रुपया लेके, उसके अलावा कोई नहीं बिका था। तो इसके देखें, इस पे प्रेशर भी कोई नहीं है, वो छोड़ छोड़ के इसको जा रहे हैं, पार्टी तितर बितर हो गई है। तो इसीलिए खान साहब, पहले जब आप कह रहे थे ना कि लोगों का ज़मीर जाग गया है, आज फलां विकेट उड़ेगी, और वो उड़ जाती थी उसी दिन, तो अब भी लोगों का ज़मीर जागा है, इनको कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इनको छोड़ा जाएगा ना, जो जो इनमें से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ना, अगर वो इस साजिश में शामिल होगा ना, आर्मी के खिलाफ ये जंग करने की साजिश, ये बाकायदा जंग थी आर्मी के साथ, इसमें जो जो भी बंदा शामिल था ना, अगर उसको इस तरह छोड़ा जाएगा ना, सबसे पहले मैं उसका मुखालिफ होऊंगा। और आप लोग ये फिक्र मत करें, अगर मतलब साबका आर्मी चीफ जनरल आसफ नवाज की जनरल साबका आर्मी चीफ जनरल मेरा ख्याल है वो क्या नाम है, अमीदा शाह, ना ना नाम भी मेरे जहन से निकल गया है, साबका आर्मी चीफ ही है, बहरहाल मैं जहन में अभी नाम नहीं उसका आ रहा है। तो अगर उसकी फैमिली की वो औरत जो कि जेल काट रही है, उसको अगर रिलीफ नहीं मिला, तो इनमें से भी किसी को नहीं मिलेगा। ये बेशक पार्टी से निकल भी जाए ना, तो ये सजा इनको मिलेगी जरूर, जो 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 इसमें मुलव्वस होगा। वो फरार हैं अभी तक, वो उसमें जो जो शामिल थे ना, या फरार हैं या जेलों में बंद है, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वो यास्मीन राशिद की जमानत ली थी ना जिस जज ने, उसको तो मैं कहता हूं उल्टा लटका के, तो दड़ा मिर्च लगा के डंडा नीचे से दें और मुंह से बाहर निकालें कि उसने कैसे जमानत दे दी थी। अब लेकिन नहीं देंगे, अब कोई जज भी नहीं देगा, अब जजों का भी नंबर लगने वाला है। इसमें पूरी तरह पूरे मुकम्मल सबूत एजेंसियों के पास मौजूद है कि बंदयाल भी शामिल था इस साजिश में, आरफ अलवी भी शामिल था, इमरान नियाजी भी शामिल था, और बाकायदा इमरान नियाजी को गाइड किया जा रहा था, वहाँ से इसको मोबाइल मिला हुआ था, उस पर वो गाइड दे रहा था एक औरत को, और औरत आगे गाइड उनको दे रही थी। उसका फर्जी नाम आजम स्वाति रखा गया था। वो उसने जब उधर से कॉल भी की थी ना उसको, मसरत चीमा को, के आजम स्वाति से भी बात करो और आजम स्वाति को हदायत दो फौरी तौर पे। और वो जो बेशक मसरत चीमा निकल गई है ना, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी वो जो है ना, वो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर वो हदायत दे रही थी, जो जो हदायत दे रही थी ना, यास्मीन राशिद देख लें, रगड़ा लगा हुआ ना उसको, नहीं उसको छोड़ा जा रहा है। बड़ा फ्रॉड किया उसने, बड़े फ्रॉड किए, फ्रॉडन तो एक नंबर के हैं ना पीटीआई वाले सारे ही, इमरान समेत। इसने जो 3 साल 3 माह ना 6 माह से प्लस्तर ही नहीं उतार रहा था, कोई जख्म नहीं निकला है इसका, जब मेडिकल हुआ इसमें कोई जख्म नहीं, कोई गोली नहीं लगी, कुछ भी नहीं था। उल्टा जो है ना इसका वो कोकीन का और पाउडर का, चरस का, वो सारा निकल आया, कच्चा चट्टा वो सारा निकल आया, इसमें खून की रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में वो आ गया। तो जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है ना, इसीलिए तो उसने कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया हुआ है, व तईज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, मैं जिसको इज्जत देना चाहूँ उसको पूरी दुनिया मिलके बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको मैं जलील करना चाहूँ पूरी दुनिया मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती है। ये इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है और जिल्लत भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, किसी बंदे को नहीं दिया है। इमरान नियाजी के हाथ में हुआ तो होता तो ये तो हर एक कहते थे
आपने मीडिया को कि भाई इसको जो भी पार्टी छोड़ के जाए उसको गद्दारी से मुंसलिक कर दो। आप खुद गद्दार साबित हुए हैं या नहीं? ये कहते हैं अल्लाह की पकड़ इसको। और कितने जबरदस्त गद्दार साबित हुए हैं, जिसमें सजाए मौत हो सकती है इसको, और होनी चाहिए। क्योंकि अगर गरीबों के बच्चों को सजाए मौत होगी, जाहिर है जिस बच्चे ने इनके बरगलाने में आके वर्दी जलाई थी उसका तो कम से कम सजा भी सजाए मौत है। फिर जिन्होंने जहाज जलाया है MM आलम का, उसमें सजाए मौत है। और इसके अलावा जो है ना, ये जो जिन्होंने GHQ पे हमला किया था उसकी भी सजाए मौत है, या उम्र कैद है या सजाए मौत है, दोनों में से एक है। तो अब आप आ जाएं जनाब के देखें, हाँ उन्होंने कादियानियों ने, हाँ एक और भी वो जो उसको 7 नकात दिए गए थे ना, उसमें छठा नकात ना सॉरी 5वां नकात था ये बनाना, वो वो जो बनाया है ना उसने सिखों के लिए, वो वो सिखों के लिए नहीं बनी है, वो बनी है असल में कादियानियों के लिए। सिख तो उसको हफ्ते में 1 दिन उनको इजाजत है, बकाया 6 दिन उसको कादियानी इस्तेमाल करते हैं। और इस पे फौरी तौर पे तहकीक होनी चाहिए और उस रास्ते को बंद करना चाहिए। उसी के रास्ते से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। सिखों ने आना है तो भाई ये आए, या बाकायदा इजाजत लेके आए, वहां पे उनके लिए वो देखें 40 कनाल का था, उसको इस मरदूद ने बढ़ा के 400 कनाल कर दिया। किस लिए? कादियानियों के लिए। खुद भी कादियानी है, इसका सक्का नाना 13वां खलीफा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। ये सिर्फ लिबादा ओढ़ के ना तो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए उन्होंने बीच में मुसलमानों के घुसड़ा हुआ था। तो बहरहाल मेरी काफी कादियानियों से भी बातचीत होती रहती है, वो भी बड़े अखलाक के साथ मेरे साथ मिलते रहते। क्यों बंदा बुराई करे किसी की? तो वो उनका अपना मसला है, उनका अपना मसला, क्या अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं तो दुआई कर सकता हूँ। तो बहरहाल मेरे साथ बातचीत होती रहती है, मैं सबके साथ करता रहता हूँ। तो क्योंकि मेरे नबी ने काफरों को के साथ भी बाइकाट नहीं किया था। बाइकाट नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनके दीन के मतलब उनसे कुछ मत पूछो, या दीन पे बहस भी मत करो। दुनिया के मतलब, अपने मतलब, या मतलब मुल्क के मतलब कोई बात करनी हो तो वो मैं कर लेता रहता हूँ। दीन पे मैंने ना कभी उनसे बहस की है, ना करूँगा। क्योंकि मेरे नबी पाक का फरमान है कि जिसने किसी को जो मतलब अपने आप को नबी या पैगंबर नौज़ुबिल्लाह समझता हो ना, उससे बात भी की ना, या उसकी तशरीह सुनी, या उसकी तकरीर सुनी, या उस वो जो तफसील बयान करेगा वो भी सुनी, तो वो बंदा भी काफर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं सुनता रहता हूँ। कोशिश करनी चाहिए सबको बचने की, अल्लाह सबको बचाए रखे। तो ये जो सिखों का वो बनाया गया है ना, ये भी जो है ना सिर्फ और सिर्फ कादियानियों के लिए बनाया गया था। इसमें पैसा किसका लगा था? आपका, मेरा, हम सब के टैक्स का पैसा। इसके अलावा गिरजे बना रहा था, मस्जिदें गिरा रहा था। 380 के करीब मस्जिदें गिरी हैं। उसमें कराची की मस्जिद बच गई थी। वो किस वजह से बची थी? अच्छा, अदालतों में भी कादियानी जज बैठे हुए हैं। वो जिस जज ने उसको मुमताज कादरी को सजा दी थी, मैं उसको गारंटी के साथ कहता हूं कि वो कादियानी था, मुसलमान नहीं था। मुसलमान होता कभी सजा ना देता। नबी के गुलाम को कभी सजा हुई है? नहीं होती, क्योंकि वो सजा दे ही नहीं सकता था। किस कानून के तहत उसने सजा दी थी और किस कानून के तहत उस पर अमल दरामद हुआ था, वो चौधरी निसार बता सकता है कि उस पर किसका प्रेशर था। ऊपर कादियानियों के इतना प्रेशर था कि भुट्टो को इन्होंने फांसी लगवा दी थी। जब इनको आखिरी टाइम तक भुट्टो को ये कहते रहे हैं कि भाई तुम वो कानून वापस ले लो, हम तुम्हें रिहा भी कर देंगे और तुम्हें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बना देंगे। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई नेकी का काम है तो यही तो है जिससे मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो उसने नहीं, इनकार कर दिया था। ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, हर जगह पे बैठे हुए हैं। तो छुपे हुए दुश्मन है ना हमारे।
یہ ظاہر نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ان سے ہمارے ملک کو بچائے۔ تو ایسے مجاہد کا ساتھ دو جیسے یہ آصم منیر صاحب ہے، اللہ نے ان کو اسپیشل ہمارا ملک بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ان کے بازو بنے، ان کی طاقت بنے، اپنی فوج کی طاقت بنے، اور ملک کو مضبوط بنانے میں ان کا ساتھ دے۔ تو اچھا، جب گورنمنٹ کو پتہ چلا نا کہ جناب سارے قادیانی مل کے نا تو امریکہ میں جا رہے ہیں، پریشر ڈلوائیں گے، اقوام متحدہ سے پریشر ڈلوائیں گے، سب بہت کچھ ہوگا ابھی نا، تو گورنمنٹ نے عقل مندی کا ایک کام کیا۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو اور اس کی گورنمنٹ کو، تمام پی ڈی ایم کو، سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا۔ اس سمیت، اس کی بیوی سمیت سب کے نام، تقریباً پوری پارٹی کے جتنے بھی ہے نا، سب کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے ہیں تاکہ یہ باہر نہ بھاگ سکے۔ پلان ان کا یہودیوں کا ہے، ان کا مور اب قانون کی اللہ کی پکڑ میں آ گیا نا، اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں لیکن کچھ کام نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ اس کو سزا، ایسی سزا دے گی نا کہ نشان عبرت بن کے رہ جائے گا دنیا کے لیے۔ اس پہ تو ابھی ایک اور کیس بھی کھلنا ہے، جو اس نے ٹیکے لگا لگا کے نا، زہر کا ٹیکا، ایک زہر اس کو ایسے زہر کا، صرف اس کو پتا تھا، کسی اور کو نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا۔ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے، یہ باہر سے وہ نظر آ رہا تھا نا، اور انتہائی بزدل بھی ہے، جتنا خطرناک ہے اتنا ہی بزدل بھی ہے، کہ یہ ٹیکے لگا کے نا، تو اس نے عامر لیاقت کو مارا، جب اس کی پارٹی سے نکلا تو اس نے پریس کانفرنس کی، اس کو ٹیکا لگا دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ وہ جو تحریک لبیک کے وہ جو تھے، اچھا اس ٹیکے سے کیا ہوتا ہے؟ اس ٹیکے سے خان صاحب نے خود بتایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خان صاحب کے بقول، کہ یہ آہستہ آہستہ زہر اثر کرتا ہے نا، اور جب اثر کرتا ہے تو پلیٹیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ گرنے، جیسے نواز شریف کی گری تھی، اس کو بھی لگایا گیا تھا لیکن اس کو اللہ نے بچانا تھا، بچا لیا۔ تو پلیٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے تمام میڈیکل رپورٹ میں ہارٹ اٹیک ہی آتا ہے۔ یہ اس طرح کا انجیکشن ہے، اور یہ خاص اس کو ان عالمی طاقتوں نے ہی دیے تھے کہ یہ جو مخالفت کر رہا ہے اس کو لگائی جاؤ تاکہ آگے ہمارے لیے آسان ہوتا جائے۔ جو جج اس کی مخالفت کرتا تھا، وہ ایک پشاور کا جج تھا جس نے مشرف کو کہا تھا لٹکا دو اور اس کی لاش کو بھی لٹکا رہنے دو، تو اس کو وہ بالکل، مطلب کوئی بیماری نہیں تھی اس کو بھی اسی طرح ٹیکا لگایا گیا۔ اس کے علاوہ پھر یہ جو جج تھا نواز شریف کے، جس کو سزا دلائی گئی تھی، جس کے تھرو اس نے جب بعد میں بیان دیا کہ میرے پر پریشر ڈالا گیا، جوان ینگ لڑکا جج، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، اس کو بھی دل کا اٹیک ہوا، ختم۔ اسی طرح دل کا اٹیک ہوتا تھا نا۔ تو باقی اس نے عامر لیاقت سمیت بہت سارے بندوں کو یہ ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کیس اس پہ کھلنے والے ہیں۔ یہ اس نے منہ سے اپنے، اچھا دیکھیں، جب اس ذات پاک کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا، تو اس نے خود اقرار کیا تھا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے وہ ٹیکا نہ لگا دیں جس کے لگنے سے پلیٹیں کم ہو جاتی ہیں اور بندے کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر جن کو مارا گیا، مطلب ان کو تو سب کو ایسے ہی ہوا تھا، ان کی پلیٹیں پہلے کم ہوئی ہیں، پھر ان کو دل کا اٹیک ہو گیا۔ وہ ذات پاک جب منہ سے سچ اگلوانا چاہتی ہے نا تو اگلوا لیتی ہے۔ وہ کیس میں بھی اس کو سزائے موت سے کم میرے نزدیک تو ناممکن ہے، کیونکہ بہت سارے اس پہ کیس ہیں جس میں کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، اور وہ یہودی قادیانی بھول جائیں کہ ان کو ان کے والے کیا جائے گا، انشاءاللہ نہیں والے کیا جائے گا۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب کے پی ٹی آئی کی وہ جو ایک عورت نہیں تھی، کمل شوزف، وہ جو ہدایت دے رہی تھی موبائل پہ کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، ادھر جاؤ، سارے مل کے ادھر جاؤ، اور عورتوں کا جتھا پورا لے کے جا رہی تھی، گئی تھی، حملے میں ملوث تھی پوری طرح، وہ ملک سے فرار ہو گئی ہے۔ کس طرح فرار ہوئی ہے؟ ایئرپورٹس پہ تو اس کا بھی نام ای سی ایل میں شامل تھا، وہ یہاں سے گئی ہے ایران۔ میں اپنی ایجنسیوں کو اپیل کروں گا کہ جیسے افغانستان کے بارڈر پہ سختی کی ہوئی ہے، اسی طرح ایران کے بارڈر پہ بھی سختی کریں،
اور ایران کے بارڈر پہ اس نے پتہ نہیں کتنا کروڑ روپیہ دے کے نا تو بارڈر کراس کروایا گیا خفیہ طور پہ، جو سرنگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا ان سرنگوں سے اس کو کراس کرایا گیا ہے، تو وہ اب پہنچ گئی ہے دوسرے ملک، وہاں سے اس نے اپلائی کیا ہے اور دوسرے ملک چلی گئی ہے، اس کو جعلی پاسپورٹ دیا گیا وہاں پہ۔ اور یہودیوں کے ہاتھ کافی پھیلے ہوئے ہیں نا، انڈین میں اس میں شامل ہے، انڈیا کا تو ایران میں بہت اثر و رسوخ ہے، ان کے بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں، اور انڈیا پوری طرح اس میں ملوث ہے کہ اس کو سیما شوزف کو کمل شوزف کو غیر ملک سے باہر نکالنے میں۔ تو میرے اپنے اداروں سے اپیل ہے کہ ان دو بارڈر پہ سختی کر دیں، نگرانی سخت کر دیں، کیونکہ باقی جو کوشش کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ وہ کیا نام ہے جی، مراد سعید بھی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح اور کافی وہ ہیں، وہ جو گنڈا پورا ہے وہ شراب خور وہ سمگلر، وہ بھی کوشش کر رہا ہے اسی طرح ایران کے راستے ہی بھاگنے کی۔ یہ آہستہ آہستہ وہ دونوں طرف کوشش کر رہا ہے، افغانستان میں اس کی رشتہ داریاں بھی ہیں، وہ ہے خود بھی افغانی ہی ہے، 2 نمبر پاس وہ کاغذات اس نے بنوائے ہوئے تھے پاکستان کے، ہے وہ بھی افغانی ہی ہے۔ تو یہ سب کوشش کر رہے ہیں، تو میری تمام ایجنسیوں سے اپیل ہے کہ ان دونوں بارڈر پہ مزید نفری بڑھا دیں تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے، اور جلد سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ اور جو کیا نام ہے کمل شوزف باغی ہے نا، اس کا بھی انٹرپول میں اپیل دائر کر دی گئی ہے، انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی واپس لایا جائے گا۔ تو جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے یوتھی ہیں نا، ان کے لیے بھی بری خبر ہے کہ کل ایک سعودیہ سے لایا گیا تھا نا، تو آج انٹرپول کے ذریعے ایک اور کو لایا جا رہا ہے جو کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے نا تو آرمی کے اوپر اور اداروں کے اوپر بھونکتا رہتا تھا۔ اسی طرح عادل راجہ کا بھی اب نمبر آنے والا ہے، اس کے لیے بھی بس کوششیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی گھسیٹ کے یہاں پہ لایا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن وہ بڑے اس کے پیچھے بہت مضبوط ہاتھ ہیں عادل راجہ کے، وہ وہاں سے فرار بھی ہو سکتا ہے، انڈیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ راہ کا بھی ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسرائیل کا موساد کا بھی ایجنٹ ہے، تو ان سے وہ اس کو کوشش کریں گے انڈیا یا اسرائیل پہنچانے کی جہاں پہ وہ محفوظ ہو۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا ہے نا، اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ ان لوگوں نے جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے نا، یہ اپنے انجام کو انشاءاللہ سارے کے سارے پہنچیں گے۔ اور باقی جو ہے نا یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اچھا اس میں بعض میں نے جو تحقیق کی ہے، میرے سامنے جو تحقیق آئی ہے، بعض سرکاری ملازم جو مطلب اچھے پڑھے لکھے یوتھیے بنے ہوئے تھے، ان کے بہکاوے میں آئے ہوئے تھے، کہ جن کی مطلب 2-2 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ سیلریاں تھیں، سرکاری ملازم عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور آج اب وہ جیل کے اندر بند ہے۔ ان کے گھر والوں کو جا کے کہے نا کہ عمران نیازی خرچہ دے، گھر میں ان کے گھر والوں پہ کیا اثر ہوا ہے۔ اچھا یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو بچے زیادہ تر اندر ہوئے ہیں نا، ان میں ان کی ماں ان گشتیوں کا سب سے زیادہ قصور ہے، جو اپنی چھڑک پوری کرنے کے لیے وہاں جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے خامدوں کو اسی لائن پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ ایک امریکہ سے آئی تھی نا یوتھن، وہ بڈھی گھوڑی، اور اس نے بال کالے کیے ہوئے، منہ پہ سرخی تھوپی ہوئی، اور ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے کہ کوئی ہجڑا ہو، ہجڑے بھی اس سے خوبصورت ہوتے ہیں، لعنت برس رہی تھی اس کی شکل پہ بھی۔ وہ اس کو وہ پوچھ رہے ہیں صحافی کہ بھائی آپ کا خاوند اریسٹ ہو گیا، تو کہتی میں کیا کروں، اریسٹ ہو گیا، دفع کرو اس کو، عمران کی بات کرو، عمران کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی میں وہ یہ عورت بھی شامل تھی، اور اس کے خامد بھی شامل تھا، جو بیوی کے بہکاوے میں آ کے زبردستی گیا، اور جب اس کو اریسٹ کر لیا گیا تو گاڑی میں سے وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ باہر میری بیوی بھی کھڑی ہے، اس کو بھی اریسٹ کرو، اصل تو مجرم وہ ہے، مجھے اگر گرفتار کیا گیا، میں تو اس کے کہنے پہ آیا تھا گھر سے،
मैं तो आ ही नहीं रहा था, मुझे वो ज़बरदस्ती लेके आई थी। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर उसको भी अरेस्ट करो, और सरकारी इदारों को चाहिए कि उसकी उस बात पे अमल करे, और उस बुढ़ी घुसूट को भी अरेस्ट करे। और इन सबको, चाहे किसी भी मुल्क का पासपोर्ट हो किसी के पास, उस इनको निशाने इबरत बनाया जाए इंशाअल्लाह, और बनाया जाएगा भी। क्योंकि इन्होंने हमारी रिट को चैलेंज किया था, हमारे मुल्क की फौज के साथ खाना जंगी शुरू करवाने का साजिश की थी। इस साजिश में जो जो भी मुलव्वस है ना, अपने अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेगा, और इनका वो असर होगा ना कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि हमने वाकई किसी कौम के साथ टक्कर ली थी, और उस फौज के साथ टक्कर ली थी जिसकी हिफाजत अल्लाह वादा शरीक कर रहा था। तो अब आप आ जाएं जनाब के आखिर में देखें, मैं एक अपील करूंगा कि अगर किसी की बीवी पीटीआई की अब भी सपोर्टर है ना, तो उसके खामद को चाहिए कि अपने बच्चों का अगर मुस्तकबल बचाना है ना, तो उसको फौरन तलाक दे के ना, तो जाके घर से बाहर निकाल दे, दफा कर दे। ऐसी औरत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इनको चस्का लगा हुआ होता है अय्याशियों का। ये अपनी अय्याशियों के लिए पीटीआई में गई थी, कोई वो नहीं था उनका, क्योंकि वो तो सियासी जमात थी ही नहीं, वो तो एक फितना था। और ये देखें, आज उसका वो भी हो गया ना कि भाई वो हमारा दीनी रहनुमा रहबर है हमारा, वो कादियानियों ने रिट दायर किया जो अमेरिका में एक दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने बाकायदा अपील किया कि हमारा रूहानी रहनुमा है वो, उसको खतरा है, उसकी जान को खतरा है, उसको रिहा करवा के सियासी पनाह दी जाए। तो अब आ गया ना कि भाई मैं कितने अरसे से कह रहा था, और मुझे यूथिया कह रहे थे नहीं जी तुम इस उम्र में झूठ बोलते हो। आ गया ना, ये अल्लाह की तरफ से होता है ना, कि प्रूफ आ गया ना कि ये भी कादियानी था। अब वो पूरी दुनिया के कादियानी इसको छुड़ाने के चक्रों में लग गए हैं, और पूरी दुनिया के यहूदी इसके पीछे लग गए हैं, चीखना शुरू हो गए हैं। उनका चीखना चिल्लाना सब बेकार जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे मालिक को मंजूर हुआ तो ये अपने अंजाम को ये भी पहुंचेगा, और बाकी भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी अवाम को से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। अभी अरेस्ट होना शुरू हो गए हुए, मीडिया पे जो लोग वो कर रहे हैं ना, उनको भी कहें कि फौरी तौर पे तौबा इस्तगफार करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, पाक अफवाज जिंदाबाद का नारा लगा दें, क्योंकि अब उनका भी नंबर लग गया हुआ है। अब जो इस तरह का काम करेगा ना, ये पूरी तरह एक्टिव हो गई हुई है, अब वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अपील है माँ बाप से कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, और अपने बच्चों का मुस्तकबल तबाह होने से बचाएं। अभी ये जो अंदर गए हैं, इनका क्या मुस्तकबल रहा है? उनका तो मतलब एक बंदे के साथ एक पूरा घर गया, वो जिसकी 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख सैलरी थी, सरकारी मुलाजिम थे, उनकी नौकरियां भी गई, ऊपर से पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकेंगे, पासपोर्ट उनके कैंसिल, शनाख्ती कार्ड कैंसिल, गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे। कौन सा मुल्क जा सकेंगे? कौन लेगा इनको? कहाँ से नौकरी मिलेगी इनको? पहली बात यह कि अंदर ही मर खप जाएंगे, इनको इतनी इतनी लंबी सजाएं होंगी। कोई भी मतलब जवान बाहर नहीं, अगर कोई आया भी ना, तो जो बहुत यंग होगा ना, तो वो मेरी उम्र को पहुंच के बाहर निकले तो कुछ कह नहीं सकता, इससे पहले नामुमकिन है। क्योंकि ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। जब बंदा अल्लाह की पकड़ में आता है ना, तो फिर पूरी दुनिया मिलके भी उसको बचा नहीं सकती है। तो अब आप करें, दुआ करते हैं सब मिलके अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। आप लोग आमीन आमीन बोला करें। ये आप पूरी दुनिया में जो लोग आमीन बोलते हैं ना, ये इन्हीं के सदक़े में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि उनके घर के हालात भी बेहतर हो गए हैं, और जो बेरोज़गार जोड़े थे उनको अल्लाह ने औलाद भी देना शुरू कर दिया है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। मैं किसी को भी शरीक नहीं ठहराता हूँ किसी के साथ। मैं हमेशा मना करता रहता हूँ कि भाई जो कुछ मांगना है उस वादा शरीक से मांगो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। हाँ, दरबारों पे ज़रूर जाओ, मैं भी जाता हूँ, वहाँ जाके भी अल्लाह से ही मांगा करो कि ए अल्लाह, मैं तेरे नेक बंदे के दर पे आया हूँ, इसके सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी ये दुआ कबूल कर ले। और जो नज़र न्याज देते हैं ना, वो भी दरबारों के नाम पे ना दिया करें, वो अल्लाह के नाम पे दिया करें, और इसाले सवाब उनको कर दिया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल सहाबा कराम, औलिया कराम को, और इन अल्लाह के वलियों को।
सवाब नजर कर दिया करें। नजर न्याज सिर्फ अल्लाह को जाती है, अल्लाह के नाम पे दी जाएगी और किसी नाम पे नहीं। ये जो 11वीं कहते हैं ना, 11वीं वाले के नाम पे है, नहीं, ये भी शिरक है। 11वीं वाले खुद 11वीं देते थे, वो खुद अल्लाह के नाम पे देते थे, इसलिए आप लोग भी अल्लाह के नाम पे दिया करें, इसाले सवाब उनको कर दिया करें कि इसका सवाब उनको मिले। ये होता है सही तरीका, किसी को भी शरीक ना ठहराया करें। मैं सुन्नी हूँ, मुझे कहीं किसी मुसलक से वो ना कर देना। मैं अहले सुन्नत वाल जमात से हूँ और मेरा ताल्लुक किसी भी अहले सुन्नत वाल जमात वो जमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आ रही है। तो मैं हर एक दरबार पे जाता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ। मेरी वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि दरबारों की उर्स पे बनी हुई होती हैं, लेकिन उर्स के दिनों में औरतों को भी ना ले जाया करो। इस पे मैं बाद में एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा, तो दुआ कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, IMF के चुंगल से निकलने में हमारी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। और या अल्लाह, हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमा, तमाम परेशानियां दूर फरमा, गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, हमारा स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी है, इमरान अजीज ने रखवा दिया हुआ, उसको वापस लेने में हमारी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, हमारी आर्मी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी आर्मी को के जवानों को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। इन पे जो लोग छुप के हमले कर रहे हैं, इनको शहीद कर रहे हैं, उनको निशाने इबरत बना, उनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह, जो बम धमाके कर रहे हैं उनको भी तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब की हिफाजत फरमा, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और इसी तरह ISI के सरबराह को, अफसरान को और जवानों को या अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह, उनकी भी फैमिलियों को भी अपनी हिफ्ज़ मान में रख और उनको भी दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, दुश्मनों को उनके सामने आया कर दे और इनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे। और इसी तरह हमारे जो FIA के जवान हैं, अफसरान हैं, उन सब को भी या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, उनकी फैमिलियों को भी अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह, उनको भी मुल्क पाकिस्तान के जो वफ़ादार हैं, जो गद्दार हैं, उनको दुनिया और आखिरत दोनों में निशाने इबरत बना दे। और जो वफ़ादार हैं मुल्क, उनकी हिफाजत फरमा। इस तरह नैब में, एंटी करप्शन में जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, उन सब की फैमिलियों को, उन सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह, इनके ऊपर खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। और या अल्लाह, खुसूसन या अल्लाह, हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं या अल्लाह, मुल्क के वफ़ादार हैं, उनको आगे आने की तौफीक अता फरमा। उन वफ़ादार जजों को आगे आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी करप्ट जज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको उनके बीवी बच्चों समेत तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह, इन तमाम करप्ट जजों को निशाने इबरत बना दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और या अल्लाह, जितने भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सेशन कोर्ट के जज हैं, और वकील भी जितने भी करप्ट वकील हैं, मुल्क के गद्दार हैं, आलमी ताकतों के वफादार हैं, या अल्लाह, उन वकीलों को भी तबाह व बर्बाद फरमा, उनके फैमिलियों बच्चों समेत। उन जजों को भी तबाह व बर्बाद फरमा, उनके बीवी बच्चों समेत। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के जो वफादार हैं, उनको आगे आने की तौफीक अता फरमा और उनके फैमिलियों को और उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह,
खसूसन पूरी पीढ़ियों को लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह इस वक्त जितने भी लोग मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं उन सब की गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह ये जो एक छुपा हुआ गद्दार है जो आज ज़ाहिर भी हो गया है, या अल्लाह अटारनी जनरल, या अल्लाह इसको भी तबाह व बर्बाद फरमा, इसको भी निशान इबरत बना दे। ये छुपा हुआ गद्दार है, मुल्क का वफादार नहीं है, ये भी उन आलमी ताकतों का ही वफादार है। या अल्लाह इसको भी नंगा कर दे दुनिया के सामने, तमाम अवाम के सामने। और या अल्लाह हमारी गवर्नमेंट को हदायत नसीब फरमा के ऐसे लोगों से बच के जिसका हक होता है उसी को ही लगाएं। और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, मुल्क के ऊपर खुसूसी रहम फरमा। जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और जितनी भी हमारी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादियों की उम्रें हो गई हैं, या अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा और उनके रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा। अच्छे नेक लोगों में उनके रिश्ते हो जाएं और उनके अच्छे नेक लोगों में शादियां हो जाएं। और या अल्लाह जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा। और जिनकी औलाद नहीं है उनको अच्छी नेक और फर्मा बरदार औलाद अता फरमा। और या अल्लाह जिन लोगों ने मुझे औलाद के लिए कहा हुआ, या अल्लाह मेरे दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा, उनको अच्छी नेक और फर्मा बरदार औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है उनको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनने की तौफीक अता फरमा। जिन घरों में तंगदस्ती है उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा। और या अल्लाह उन घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। जिन घरों में बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन बुज़ुर्गों को हदायत नसीब फरमा और घर वालों को उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सच बोलने की तौफीक अता फरमा, झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा। हम सब के घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हमें जो हक लाल के रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा और हक लाल के थोड़े में भी ज़्यादा बरकत डाल दिया कर। और या अल्लाह रोज़ क़यामत हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।